Gurudeve, děkuji taky za včerejší cvičení samozřejmě a spousta nádherných zkušeností, které se přenesly i do dnešního dne. Uvědomil jsem si, aspoň krátce si dovolím zazdílet, uvědomil jsem si, že mnohem více si vážím stravy, kterou přijímám a se vděčností, jak tato vznikla, co tato mi může darovat a o to více si zase v cyklu vážím svého těla. To je jenom na úvod a poté k mé otázce. Má otázka se týká toho, co se děje aktuálně ve světě. Mí kolegové by asi s obavami koukali na zhoršující se bezpečnostní situaci, na počet válek, které ve světě rostou. A z mého pohledu se snažím tyto věci vidět trošičku jinak a dotaz s tímto spojený zní tak, lze na válku pohlížet jako na prostředek přírody k vytváření karma fall, karma bug, a nebo je to defekce v rámci systému a jak s válkou pracuje Darbar jako takový, jestli ji pozoruje, jestli do ní vstupuje, po případě za jakých podmínek nebo na základě jakých impulzů války se snaží sklidnit a řekněme, pokud je to defekce, tuto defekci narovnávat. In English, first is the observation. I just want to thank Gurudev also for the yesterday's self-loving experience, because thanks to that, I already feel the differences. In the morning when I had breakfast, I was very grateful for every and each piece of the food I am getting to my body. I was enjoying it more profoundly. I was giving it with grace to my body and asking the body to enjoy it and to serve me well. So this is just the observation. Then I will continue with the question, or I don't know, Sensei-ji, if I could follow immediately with the question. So, and then the question is regarding the security situation in the world. Many of my colleagues would raise their concerns regarding the numbers of wars, numbers of people who are dying. Within the 5 years, the statistics are, let's say, could be scary, but I am trying to look at it from different perspective. And I am asking whether we could perceive the war as an instrument for the nature using or Tantra using the karma fall and karma book in the right moments. Is it an instrument or is it a defection of the system? How to perceive it from our perspective? And then how Darbar perceives it, whether Darbar works with this, whatever it is, how to call it, I am not sure. And if there are any rules for Darbar, when to intervene, in which wars, in which situations, how to look at it in general from the perspective of Tantra and Darbar as well. Thank you. स्टीफन का प्रश्न 2 भागों में है। प्रथम भाग में गुरुदेव का अनंत कोटि धन्यवाद करते हुए पर्टिकुलरली लव योरसेल्फ साधना में उन्होंने काफ़ी परिवर्तन महसूस किया और उसको वो ऑब्ज़र्व कर पाए आज सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे और प्रत्येक कण को बहुत ही इंजॉय करके बहुत ही आनंदित होकर भोग रहे थे कि वह उनके स्वयं के लिए है, उनके शरीर के लिए है और उसमें उनका कई गुना रस बढ़ा हुआ था आनंद का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न का दूसरा भाग है कि वो स्वयं चूँकि अपने कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो एक डेटा जो पिछले 5 वर्षों में पूरा विश्व युद्ध की आग में जल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, कभी कहाँ, जो काफ़ी डरावना चित्र प्रस्तुत कर रहा है पूरी मानवता के लिए। वैसे में उनका प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो रहा है
और इसमें क्या मानव के कर्म भोग का यह परिणाम है या ऐसी कोई स्थिति है जहां दरबार उसमें हस्तक्षेप करके वैसे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है या भविष्य में करेगा, यह समझना चाहते हैं, क्योंकि वो दरबार की शक्तियों से परिचित हैं कि दरबार क्या क्या कर सकता है सूक्ष्म में, कारण जगत में, और इसी पर आधारित उनका प्रश्न है। थैंक यू स्टीफन। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि आप लोग सभी लोग शनय शनय ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ध्यान आपका निरंतरता में आ रहा है। केवल सेशन में ध्यान करने के लिए नहीं होता, सेशन तो प्रैक्टिस के लिए है, फिर उसके सदुपयोग के लिए ध्यान के हम उसको निरंतरता में लाते हैं तो उसकी पूर्णता होती है ध्यान की। तो बहुत अच्छा है कि आप चीज़ों को ध्यान दे पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं। दो ही पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में आप लोग नए कीर्तिमान जरूर स्थापित करेंगे ध्यान के क्षेत्र में। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि हज़ारों हज़ारों किलोमीटर से, कई हज़ार किलोमीटर की दूर से, समुद्र पार से आप समझने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। अपने अपने देश की आप लोग धरोहर हैं। अपने तमाम सारे कार्य छोड़ करके समझने का जो क्रम आप में बना हुआ है ऐसे ही बना रहे। बहुत शुभकामनाएं हैं। और वहाँ से आप आ कर के और ध्यान दे पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं, ये इस शिविर की सफलता भी है। दूसरा जो आपका प्रश्न आया कि युद्ध, चूँकि आप अपने देश में उसी विभाग में हैं, रक्षा मंत्रालय है आपके पास, तो स्वाभाविक है आप में वो प्रश्न उठने। ये मानवीयता से भरा हुआ प्रश्न है। मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य समस्या में रहना नहीं चाहता। ये व्यवस्था है। समस्या से बाहर आना चाहता है। समस्या उसे स्वीकार नहीं है, इसलिए उसका निरंतर वो हल ढूंढता रहता है। हमें जड़ पर विचार करना चाहिए कि इसकी रूट्स में प्रॉब्लम कहाँ है। युद्ध ना होने दिए जाए ये समस्या का हल नहीं है। युद्ध की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं और उन परिस्थितियों को उत्पन्न ही ना होने दिया जाए, इस पे चर्चा की और उसके आधार पे जीने की आवश्यकता है। तो मनुष्य का स्वभाव है समस्या से बाहर निकलना। जब मनुष्य समस्या से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे उसका ऑर्डर नहीं पता है बाहर निकलने का, तो फिर वो हरकतें उलूल जुलूल करता है। फिर उसने जो समझा है, सीखा है, पढ़ा लिखा है, सुना है, उसके आधार पे वो त्वरित निर्णय लेता है। दरबार बार बार कहता है मानव का जो लक्ष्य है वो निरंतर सुख है, शांति है, संतोष है,
आनंद है, परमानंद है। तो पहले ही कॉलम में जो सुख मिला नहीं, क्योंकि सुख मिले निरंतर तो शांति आए। तो सुख की जो निरंतरता है ये मानव लक्ष्य है। तो जब अभी मानव लक्ष्य ही अचीव नहीं हुआ तो शांति वाले कॉलम में अभी हमारा प्रवेश नहीं हुआ। ये क्रम है। निरंतर सुख यानी सुख की निरंतरता, कंटिन्यू हैप्पीनेस, देन पीस, पीसफुल इन्वायरमेंट मेड बाय कंटिन्यू हैप्पीनेस। तो जब हम निरंतर सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं, हमारी सुख की निरंतरता नहीं है, तो हम शांति के कॉलम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही क्रम है, निरंतर सुख से शांति, शांति से संतोष, सेटिस्फैक्शन, और संतोष से फिर आनंद, आनंद से परम आनंद। तो हम अभी निरंतर सुख पर नहीं पहुँचे हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, ऐसे हम झूले में झूलते रहते हैं और शांति की उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय निकलता है, युद्ध होता क्यों है? युद्ध के पहले द्रोह एक शब्द है, द्रोह। द्रोह कहाँ से पैदा होता है? आशंकाओं से। किसी व्यक्ति के प्रति आशंका है तो फिर द्रोह उत्पन्न होगा। द्रोह जब अंदर अंदर काफ़ी भारी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर विद्रोह होगा। द्रोह विद्रोह। अब होता क्या है कि इस आशंका से भय उत्पन्न हो रहा है, अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद द्रोह हो रहा है, फिर विद्रोह हो रहा है, फिर युद्ध। तो युद्ध एकदम से नहीं होता है कभी, इसके पीछे क्रम है। धीरे 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 परिस्थितियों का निर्माण होता जाता है और ऐसी सी स्मृतियाँ इकट्ठी होती जाती हैं, दैत्य स्मृतियाँ, जिनको रक्तपात में ही आनंद है। तो हमारे सिस्टम में एक जो सबसे बड़ी कमी है कि हमने मान लिया कि युद्ध हो जाएगा तो फिर शांति आ जाएगी, दुश्मन को मार लेंगे तो फिर हमारा कोई विरोध नहीं करेगा और फिर शांति हो जाएगी। उस शांति की अपेक्षा में सारे युद्ध हैं। जितने भी युद्ध हैं संसार के, सब शांति की अपेक्षा में हैं। गलत तरीका, गलत रास्ता ही गलत चुन लिया कि हम मारने के बाद ये हमको आदमी जान से मार देगा, तो क्या उपाय है? इसको जान से मार दो तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय नहीं है, ये अपराध है। ये आप और ज़्यादा बड़े संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। तो युद्ध सलूशन नहीं है, क्योंकि युद्ध के बाद भी शांति ही होती है, वार्ता ही होती है, वार्ता के बाद फिर शांति। तो ये वार्ता तो पहले भी हो सकती है, लेकिन जो ये उन्माद पैदा हुआ है, ये उन्माद पैदा हुआ है हमारा संबंधों के बिखराव के कारण। संबंध आपस में महसूस नहीं करते तो हम महसूस करते हैं अविश्वास, आशंका। तो समस्या वहाँ पर है मूल में कि हम निरंतर सुख को कैसे प्राप्त करें। ये तो उसका आध्यात्मिक पहलू है कि कैसे हम निरंतरता को, सुख की प्राप्त करें, ताकि युद्ध का तो कालम ही खत्म हो जाएगा, युद्ध बचेगा ही नहीं। अब व्यवहारिक उसमें आ जाएं, इसको पूरा कर देते हैं। Gurudev's answer also has two parts. The first part, Gurudev thanks you
since you all are able to observe things correctly, Gurudeva odpověď má dvě části. V první části by vám chtěl poděkovat, že jste schopni správně vidět věci kolem sebe. जैसे एक शब्द गढ़ा गया है पूरे विश्व में, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक stick produce. प्रोडक्शन, There is जिसकी दर सबसे ज़्यादा है वो विकसित माना जाता है. the country that has the highest level of GDP is treated and considered as the developed nation, most developed nation. Ty země, které mají nejvyšší HDP, jsou vlastně považovány za ty nejrozvinutější země. प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये डिमोशन है, डिमोलेशन है और हम चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं. If you look at the same concept and principle of GDP from nature's eyes, from nature's perspective, it is not development, it is devolution, de-evaluation and demotion of that country. Když se na to podíváte na HDP, hrubý domácí produkt z pohledu přírody, tak se rozhodně nejedná o rozvoj, ale vlastně cestu zpátky, ponížení. ये विकास नहीं, ये विनाश की दर है. This is not the rate of development, this is the rate of destruction. To není vlastně hodnocení rozvoje, ale je to spíše hodnocení destrukce. इस सृष्टि में विकास सिर्फ एक है कि हम जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण कर जाएं. Oh, Gurudev. दूसरा कोई विकास नहीं है. इसके अतिरिक्त हम सब चीज़ तोड़ना चाहते हैं और तोड़ते रहते हैं. तो सिर्फ विकास के रूप में एक ही वस्तु है कि हम अपने जो शरीरगत चेतना से आगे बढ़ कर के हम जीवनगत जो हमारी संचेतना है उसको समझ पाएं. हम जानवरों की भाषा से मनुष्य की भाषा समझ पाएं. जानवरों जैसा रहने से हम मनुष्य जैसा रह पाएं, जी पाएं. सिर्फ यही विकास है. The only development is the development from bodily or consciousness related with physical manifestation to life consciousness. Jediný rozvoj je, lze konstatovat, že rozvoj musí být spolu s vědomí těla, From physical z manifestation fyzické manifestace to life consciousness. k životnímu vědomí. To je rozvoj. Z fyzické manifestace k životnímu vědomí. If we are able to transform from physical manifestation to deeper understanding of life consciousness, that alone can be treated as real development. Když jsme schopni transformovat z fyzického bytí do hlubšího porozumění životního vědomí, tak toto lze považovat za rozvoj. In life consciousness, that is the process of being in unison with nature. The physical manifestation and caring of the physical manifestation, limiting ourselves to physical manifestation, leads us only to destruction. A pokud se pouze staráme o tu fyzickou manifestaci a koukáme se na to i pouze z této stránky bez ohledu na životní vědomí, tak to vede k destrukci. गुरुदेव, ये यूनाइटेड नेशन में देने वाला स्पीच है सभी मुल्कों को, सभी राष्ट्रों के लिए. आई सेड टू गुरुदेव दैट दिस व्हाट यू हैव जस्ट सेड, गुरुदेव, दिस इज एक्चुअली मेंट to be discoursed
in United Nations General Assembly. A toto by mělo být přednášeno, co Gurudev právě řekl, na shromáždění Spojených národů. For the world to find the root cause and drive collectively to the greater cause of universal peace. Tak, aby se svět začal zabývat zdrojem, kořenem problémů a směřoval k trvalému míru. Začal směřovat k trvalému míru. विकास के लिए जो चेतना का विकास है वो सिर्फ और सिर्फ मूल्य शिक्षा से संभव है. The development of consciousness is possible only through valued education. Value-based education. Rozvoj vědomí je možný pouze prostřednictvím hodnotného učení. Value-based education. Human values Human values. human values and professional ethics. Na základě lidských hodnot a profesionální etikety. Profese. तो चेतना का विकास केवल मूल्य शिक्षा से ही हो सकता है और मूल्य शिक्षा को जब हम अपने आचरण में धारण करते हैं समझदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक, तो फिर हम सही से भागीदारी कर पाते हैं. And only way in तो दो चीज़ें हैं, जिंदा रहने के लिए और जीने के लिए. जिंदा रहने के लिए शरीर के अर्थ में है, जीने के लिए सुख शांति के लिए जीवन के अर्थ में. So there are only two things: to survive and to live. To survive is confined to upkeep of the human body, and to live is to be connected with the life consciousness. के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है. प्रथम के लिए जीने के लिए हमें चेतना विकास करने के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है और जिंदा रहने के लिए कि हम जीवित रहें, ये मानव जाति जीवित रहे, उसके लिए सही सही तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है. We have to जीने वाला पार्ट जो चेतना विकास से संभव है, संक्रमण जीव चेतना से मानव चेतना में, वो तो लगभग गायब है. the development of consciousness or jumping into that consciousness is literally absent. और जो दूसरा पार्ट है टेक्निकल एजुकेशन का, उसका बहुत बुरा हाल है. And the other part of technical education is in the worst shape. A další část technického vzdělávání je ve své nejhorší podobě. तीन चीज़ें जो एकदम मुफ्त थी, एकदम फ्री, चिकित्सा, शिक्षा और न्याय, आज विश्व की सबसे महंगी श्रेणी में है. Three things that इसका बहुत बुरा हाल है. आपको अनुभव किया होगा आप लोगों ने. घर में एक डाइनिंग टेबल, एक सोफ़ा सेट, 4 कुर्सी, पलंग,